My dear friends, I welcome you to yet another session on chemical kinetics. Chemical kinetics के जो multiple choice questions है लेक्चर नंबर 3 से जुड़े हुए उसके सॉल्यूशंस हम देखेंगे आज। आशा करते हैं कि आपने लेक्चर नंबर 3 देखा है और उसके साथ जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व भी किए हुए। समय हो चला है उसके सॉल्यूशन का। शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1, the rate constant is given as 10.8 into 10 raised to minus 5, 10.8 into 10 raised to minus 5 mole per liter per second, मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर डीएम क्यूब है। ओके, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। सवाल पूछा है उन्होंने, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डैश। हमको मालूम है order of the reaction rate is equal to K into concentration of A. This is mole per dm cube per second is equal to K into A raised to the power x suppose. So this is going to be, ये R है ना, K की यूनिट से, सॉरी. So this is mole per dm cube per second is equal to mole per dm cube per second. Concentration of A raised to x कट हो जाएगा. Concentration of A raised to x is equal to 1, x is equal to 0. It's a zero order reaction. The answer is A, first option. The answer is A, first option. Question number 2. Question number 2. What is the unit of rate constant when the order of reaction is half? Rate is equal to K into A raised to the power half. This is mole. यूनिट्स क्या है देखता हूँ थोड़ा. मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू K इंटू मोल्स पर लीटर रेस टू हाफ, मोल अपॉन मोल रेस टू हाफ, लीटर रेस टू -1 अपॉन लीटर रेस टू -हाफ, S raised to -1 is equal to K. K is equal to mole raised to the power half, L raised to the power -half, second raised to -1. K is equal to mole raised to the power, अच्छा मोल पर लीटर उन्होंने डायरेक्टली ले लिया है. ओके, सो दिस इज इक्वल टू मोल लीटर रेस टू -1 रेस टू हाफ, सेकेंड रेस टू -1. उन्होंने जिस फॉर्मेट में दिया है उसमें मैं लिख रहा हूं. द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन. द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन. सवाल नंबर 3 की बात करते हैं. A gives B, it is K1. B gives C, it is K2. And C gives D, it is K3. So A gives B, it is K1. B gives C, it is K2. And C gives D, it is K3. K3 बड़ा है. So K3 is greater than K2 is greater than K1. So rate in the third case is greater than the rate in the second case is greater than the rate in first case. Rate R1 is lowest. Therefore, it's rate determining step. So A gives B, which is K1, is our rate determining step because वहाँ पे रफ्तार सबसे कम है. The slowest step is the rate determining step. RDS is A, first option. RDS is A, first option. Right? Okay. चौथे सवाल का रुख करते हैं अभी. Question number 4. The question goes this way. For a reaction 2A plus B gives C plus D. एक reaction है 2A plus B gives C plus D. इस रिएक्शन में
The active mass of B is kept constant and that of A is tripled. 3 गुना कर दिया. Initial rate of reaction K into concentration of A raised to 2 into concentration of B. Rate 1 is equal to K into 3 times A का square into B. 9 times K into concentration of A का square into B. 9 times R. R1 is equal to 9 times R. रफ्तार 9 गुना हो गई है और जवाब है increases 9 times. It's B second option. It's B second option. सवाल नंबर 5. The rate law for a reaction is RCl plus NaOH gives ROH plus NaCl. SN1 रिएक्शन है. रेट लॉ जो है it is rate is equal to K into concentration of RCl. Rate is equal to K into concentration of RCl. The rate of the reaction will be, okay, क्या होगा? Not affected on doubling the concentration of sodium hydroxide. Yes, A सही है. It will not be affected. A सही है option. Halved on reducing the concentration of alkyl halide to half. Yes, B भी सही है कि because उसके ऊपर dependent है rate, so उसका concentration आधा कर दिया, rate भी आधा हो जाएगा, लाजमी है. Increased on increasing the temperature. Of course, temperature बढ़ाएंगे तो K बढ़ेगा, rate भी बढ़ जाएगा. अरे सब कुछ सही है यार. Option D, unaffected by increasing the temperature. Option D गलत है. Option D is wrong because temperature के ऊपर K depend करेगा, as a result rate भी depend करेगा. The incorrect statement पूछा है उन्होंने. The incorrect statement is D. The incorrect statement पूछा है उन्होंने. The incorrect statement is D. छठे सवाल के बारे में बात करेंगे. A2 plus B2 gives twice AB. The mechanism as given below. A2 gives A plus A, that's the fast one. A plus B2 gives AB plus B is the slow one. And then A plus B gives AB is the fast one. The order of the overall reaction, it is going to be dash. The order of the overall reaction is going to be dash. The order of the overall reaction depends upon the slowest step. The order of the overall reaction will depend upon the slowest step. The slowest step is A plus B2 gives AB plus B. A plus B2 gives AB plus B. This is the slowest step. And the order, the rate law will be rate is equal to K into concentration of A into concentration of B2. हमने जो सीखा है उसके accordingly ये rate law आएगा and therefore the order will be 2. The order will be 2. The answer is first option. अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखो. There is a different वर्जन ऑफ दिस. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट अगर कर दिया जाए इसको, वो मैं आपको ढूंढना है. देयर इज वन मेजर वे आउट ऑफ दिस कि भले ही ऐसा है लेकिन इसका रेट जो है वो आपको पढ़ाया नहीं गया है. ये थोड़ा सा अलग से एडवांस टाइप क्वेश्चन है. उसका रेट आता है 1.5. जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली ये सफिशिएंट है, लेकिन थोड़ा एडवांस वर्जन से वो आता है 1.5. कैसे आता है ये आप ढूंढने की कोशिश करिएगा एक बार, लेकिन विल स्टिक टू दिस फॉर द टाइम बिंग. क्वेश्चन नंबर 7. द रेट ऑफ द रिएक्शन 3A plus 2B gives C. 3A plus 2B gives C. ये एक रिएक्शन है. The rate equation is given by dx by dt. dx by dt. The rate equation is given by, ये rate है, K into
एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू 1। अब क्या क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे। Which of the following is false? Okay, the reaction is overall a second order reaction. Is this a second order reaction? Nahi, it is not a second order reaction, it is a third order reaction. Second option, the rate will not be altered by doubling the concentration of B. अरे B को डबल कर दो तो रेट भी डबल हो जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरी स्टेटमेंट, टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट। अरे भाई टेम्परेचर हर बार इफेक्ट करेगा ही। तीनों गलत है। सो ऑप्शन डी इज राइट कि तीनों स्टेटमेंट गलत है। ये जो ऑप्शन डी है वो सही है, वो सही है। सवाल नंबर 8, 8, 9 और 10 तीन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ओके, इसका क्या? इट इज फाउंड दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन A एंड B आर 1 and 2 respectively. 1 and 2 respectively. Rate is equal to K into concentration of A into concentration of B का square. When the concentration of A is held and B is doubled, rate K A by 2 2B का square. This is K into concentration of A into concentration of B का square into 2 times rate. रेट दुगना हो जाएगा। The answer is the increase in the rate will be by a factor of 2. The answer is A, first option. The answer is A, first option. चलिए 9वें सवाल के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, the reaction proceeds by two-step mechanism. A2 gives 2A fast and A plus B gives product. The overall rate of the reaction is going to be dash. A plus B gives product is the slowest one and therefore it is going to be. अब यहाँ गड़बड़ क्या है देखो। Yeah, I was talking about this question, is it not? कि यहाँ पे दूसरे मेथड से आता है। चलो आज वापस एक क्वेश्चन उसी तरीके का आया है तो बात करते, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन है, a reaction proceeds by two-step mechanism. A2 K1 है यहाँ पे, ये K2 है, gives 2A। ये रिएक्शन है, ये A plus B gives product, A plus B gives product. First step is the fast step and the second step is going to be a slow step. वो क्या पूछ रहे हैं देखो, what is the rate law for the overall reaction? What is the rate law for the overall reaction? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आंसर आया है डी इसका, that is rate is equal to K into concentration of A2 raised to the power half into concentration of B. इसके जैसा ही, जैसे 1.5 बोला है, इसको भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ये बिल्कुल उसी के जैसा ही क्वेश्चन है, इसको हम डी ऑप्शन देंगे। और आज का आखिरी सवाल, इफ द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is increase m times, concentration m गुना बढ़ा दिया गया, then the rate constant k is a function of temperature. As temperature is same, क्या होगा रे बच्चों? k is not going to change, k won't change. The answer is it will remain k. The answer is D. The answer is D, fourth option. ओके, अब
मैं जो 6th क्वेश्चन है उसको थोड़े गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1.5 कैसे आता है। बड़े गौर से देखो, एज आई टोल्ड यू थोड़ा एडवांस टाइप है, तो एक का हिंट दे दूंगा, इसको आप ढूंढने की कोशिश करिएगा। इसको मैंने भले ही ए ऑप्शन लिखा है जो आपको अब तक की पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंगली। रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स ट्वाइस ऑफ AB। बड़े गौर से देखिएगा, ये जेई एडवांस की टाइप का क्वेश्चन है। A2 प्लस B2 गिव्स ट्वाइस AB। इसमें दो चीजें हो रही है, पहले A2 स्प्लिट हो रहा है, A2 गिव्स A प्लस A, ये फास्ट है। A2 गिव्स A प्लस A, फास्ट है। फिर A प्लस B2, फिर A प्लस B2 जो मैंने लिखा है स्लो स्टेप है, जो देगा AB प्लस B, ये स्लो स्टेप है। और फिर तीसरी स्टेप है इसमें, A प्लस A गिव्स AB, A प्लस A गिव्स AB, ये फास्ट है। इनको ऐड कर दो आप, A और A कट हो जाएगा, फिर AB प्लस AB क्या हो जाएगा, AB प्लस AB ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा, ये कट हो गया। A2 प्लस B2, ये एक्स्ट्रा A क्यों है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। A2 गिव्स A प्लस A फास्ट, A प्लस B2, A प्लस B2 गिव्स AB प्लस B, ये भी बराबर है। AB गिव्स A प्लस B गिव्स AB। ओके, अब इसका रेट हमको डिटरमाइन करना है, इसका रेट मुझे डिटरमाइन करना है, तो रेट लाजमी है ये आ जाना। सो फाइंड द रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2, राइट। अब मुझे ढूंढना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, अब मुझे ढूंढना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रहा है देखो, फर्स्ट इक्वेशन को मैं लोमार लगा रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन को मैं लोमार लगा रहा हूं। K, इसको लिखूंगा 1, इसको लिखूंगा 2, इसको लिखूंगा 3, इसको मैं लोमा लगा रहा हूं। K इक्विवेलेंट क्या आएगा, वो आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, दैट इज K इक्विवेलेंट इन द फर्स्ट स्टेप। K इक्विवेलेंट से मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विल बी इक्वल टू, ये इधर से इधर गया, K इक्विवेलेंट इसका स्क्वायर आएगा पहले तो इंटू A2, फिर आएगा A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K इक्विवेलेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, K इक्विवेलेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है रेट का, उसमें डाल दो, रेट इज इक्वल टू K इंटू स्क्वायर रूट ऑफ K इक्विवेलेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, क्योंकि नेट रिएक्शन ये है मेरी, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2, दिस इक्वल्स K इंटू स्क्वायर रूट ऑफ K इक्विवेलेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 रेज टू हाफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। तो ये इसके फॉर्मेट में आ गया, तो ये नया K है K डैश इंटू A2 रेज टू द पावर हाफ इंटू B2 raised to the power 1, that is 1 plus half, it is going to be 3 by 2 or 1.5, it is going to be 3 by 2 और 1.5, ये ऑप्शन सी आता है। ओके, तो ये जो है ये इसमें फिलहाल आपको काम नहीं करना है, इसलिए मैं इसको मार्क्स दे रहा हूँ अभी। आई एम गिविंग मार्क्स टू द आंसर विच इज 2, लेकिन डिटेल में इसको कुछ ऐसे करना है, इसकी मदद से आप 9th क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जिसका आंसर डी है। चलिए देखते हैं सब क्वेश्चन के आंसर है क्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, और 6 क्वेश्चन उस एडवांस के मेथडोलॉजी से सॉल्व किया गया है। आशा करते हैं कि ये 10 सवालों के जवाब आपके जहन में आ चुके हैं। टॉपिक
नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 से जुड़े हुए एमसीक्यूज जो है वो कंबाइन करके लिए है, इसलिए अब इसके बाद लेक्चर नंबर 5 से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हम देखेंगे अगले लेक्चर में, जो कि कम है, 7 है। तो आशा करते हैं कि इसमें से ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है आप समझोगे ठीक से, और कल मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के वक्त। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।